نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص حساب کتاب کے خوف سے کانپ رہا ہوگا، جب پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، جب فرشتے ہر انسان کے اعمال نامے کھول رہے ہوں گے، تو ایسے کچھ خوش نصیب بھی ہوں گے جنہیں کسی حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نہ وہ راکیں گے، نہ ان کے اعمال تولے جائیں گے، نہ ان سے کوئی سوال کیا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سیدھے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر چن لیا ہو۔ آخر یہ لوگ کون ہوں گے؟ ان کا راز کیا ہے؟ ان کی زندگی کا وہ کون سا اصول تھا جس نے انہیں دنیا میں عام انسانوں سے ممتاز کر دیا؟ کیا وہ توکل کرنے والے تھے؟ کیا ان کے دل خوف سے خالی تھے؟ یا ان کی عبادت کچھ ایسی تھی جو دوسروں سے مختلف تھی؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، ان 70,000 خوش نصیبوں کا ذکر کریں گے جنہیں نبی کریم نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت دی، اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کا دن ایک خاموش، ہولناک اور ہر طرف خوف سے بھرا منظر ہوگا۔ انسانوں کا ہجوم نان محشر میں جمع ہوگا، ہر آنکھ سہمی ہوئی، ہر دل لرزاں ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب دنیا کے تمام بادشاہ، فقیر، ظالم، مظلوم، عالم اور جاہل سب برابر صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی رتبہ، کوئی تعلق، کوئی دولت کسی کے کام نہ آئے گی۔ ہر شخص تنہا صرف اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا جسے سن کر دل دہل جائے گا، جسم کانپنے لگے گا، پل صراط۔ نبی کریم کی ایک مشہور حدیث ہے جو کئی کتب حدیث میں مروی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ یہ پل نہایت تیز ہوگا، یعنی اس پر سے گزرنا انسان کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا۔ پل کے نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بھڑک رہی ہوگی، اور پل کے کناروں پر خاردار کانٹے اور پکڑنے والے آنکڑے کرو ہوں گے۔ سوچئے، قیامت کے دن ہر انسان کی رفتار اس کے دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ جنہوں نے زندگی تقوی اور ایمان کے ساتھ گزاری ہوگی وہ روشنی کی رفتار سے گزر جائیں گے، لیکن جن کے اعمال کمزور ہوں گے ان کے قدم ڈگمگائیں گے، وہ لڑکھڑائیں گے، ان کے جسم پل پر گھسٹتے جائیں گے اور بہت سے جہنم کی آگ میں جا گریں گے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، نیچے دہکتی ہوئی آگ ہے جس سے شعلے اٹھ رہے ہیں، سناٹا ہے جیسے فرشتوں کی گرجدار صدائیں، اندھیروں کا راج ہے، اور ہر طرف لوگوں کے کراہنے، چیخنے اور مدد کی پکار کی آوازیں سنائی دے رہی ہے۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے جن پر فرشتے سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہیں فرشتے پیچھے سے دھکا دے کر پل سے گرا رہے ہوں گے۔ پل پر جھٹکے ہوں گے، خاردار آنکڑے ہوں گے، اور پیچھے سے آنے والوں کا ہجوم ہوگا۔ یہ وہ منظر ہے جو انسان کی روح کو ہلا دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، رسول اللہ خود اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اور ان کے سامنے ان کے ماننے والے اس خطرناک پل پر سے گزر رہے ہوں گے۔ کچھ کامیابی سے گزر جائیں گے، کچھ درمیان میں پھنس جائیں گے، اور کچھ دوزخ میں جا گریں گے، سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس پل پر کانٹوں میں پھنس کر نیچے گر جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ کو فرشتے دوبارہ کھینچ کر نکال لیں گے۔ کچھ لوگوں کو سفارش، شفاعت کے ذریعے تو ان کے عزیزوں کی، نبی کریم کی شفاعت کے صدقے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ پل صراط کے کنارے فرشتے کھڑے ہوں گے اور ایک ایک انسان کا نام پکارا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ۔ کچھ کے ہاتھوں میں نور ہوگا جو ان کے راستے کو روشن کرے گا، اور کچھ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں نماز سے غافل تھے، ظلم کرتے تھے، والدین کی نافرمانی کرتے تھے، زنا، سود، جھوٹ اور غیبت میں ملوث تھے، ان کے لیے یہ پل عذاب بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پل کہاں ہوگا؟ حدیث کے مطابق جب نان محشر کا فیصلہ مکمل ہو جائے گا اور جنت و دوزخ سامنے ہوں گی، تب پل صراط قائم کیا جائے گا۔ یہ پل نان محشر سے جنت کے درمیان تانا جائے گا، لیکن اس کے نیچے دوزخ کی آگ دہک رہی ہوگی۔
गोया इंसान को जन्नत तक पहुंचने के लिए दोज़ख के ऊपर से गुजरना होगा और सिर्फ वही कामयाब होगा जिसके अमाल इस काबिल होंगे कि वो अल्लाह ताला के हुक्म, इसकी रहमत और अपने नेक अमाल की रोशनी से इस पुल पर तवाज़ुन कायम रख सके। नाज़रीन, अब बात करते हैं उन खुश नसीब लोगों की जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। एक दिन नबी करीम ने अपने सहाबा कराम को एक ऐसी खुशखबरी दी जो ईमान वालों के दिल को रोशनी, यकीन और उम्मीद से भर देने वाली थी। आपने फरमाया, मेरे रब ने मुझे मेरी उम्मत के 70,000 अफराद के बारे में खबर दी है जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये सुनकर सारे सहाबा कराम हैरान रह गए और इस खुश नसीबी की असल वजह जानने की ख्वाहिश जाहिर की। तब नबी करीम ने फरमाया कि उन लोगों की 4 नुमायां सिफात होंगी, 4 ऐसी हैरान कुन और मुनफरिद खूबियां जो उन्हें आम इंसानों से मुमताज बनाती हैं और उन्हें अल्लाह के दरबार में इस कदर मुकर्रब बना देती हैं कि उनका कोई हिसाब ही नहीं लिया जाएगा। नंबर 1, ये लोग दाग लगाकर इलाज नहीं करवाते, यानी गर्म लोहे से जिस्म पर दाग लगाकर इलाज करना एक मरूफ और आजमूदा तरीका रहा है जो बज़ाहिर बीमारी का इलाज था, मगर न सिर्फ जिस्मानी अजियतनाक बल्कि इंसान को दूसरों पर इन्हिसार का आदी भी बना देता था। अगरचे शरीयत ने इस इलाज को हराम करार नहीं दिया, मगर नबी करीम ने उन लोगों को सबसे आला मकाम का मुस्तहिक करार दिया जो ऐसे तर इलाज से परहेज करते हैं। इसी वजह से इन 70,000 खुश नसीब अफराद की फहरिस्त में शामिल किया गया जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। उनकी नुमाया सिफात में से ये भी है कि वो कन नहीं करवाते। ये महज इलाज न करवाना नहीं बल्कि रूहानी खुददारी और अल्लाह पर तवक्कल की इंतहा है। ये वो लोग हैं जो बीमारी को सिर्फ जिस्मानी मसला नहीं समझते बल्कि अपने रब की तरफ से आजमाइश, इम्तिहान और तरबियत तसव्वुर करते हैं। वो इस दर्द और तकलीफ में भी अल्लाह की रजा को तलाश करते हैं। उनके दिलों में पुख्ता यकीन होता है कि अगर अल्लाह चाहे तो बगैर दवा, बगैर किसी मुआलिज, बगैर किसी वसीले के शिफा दे सकता है, और अगर वो ना चाहे तो दुनिया भर के माहिर तरीन डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। यही वो बातिनी ताकत है जो उन्हें आम इंसानों से मुमताज करती है। वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं बल्कि उनकी रूहानी दुनिया भी निहायत मुस्तहकम, पुरसुकून और अल्लाह पर कामिल एतमाद से लबरेज होती है। उनकी रूह अल्लाह की कुदरत पर इस कदर यकीन रखती है कि वो किसी इंसानी सहारे को असल शिफा का जरिया नहीं मानते। बेशक वो जिस्मानी तौर पर कमजोर और बीमार नजर आ सकते हैं, मगर उनका दिल, उनका यकीन और उनकी रूह इतनी ताकतवर होती है कि वो हर आजमाइश को सब्र, रजा और तवक्कल के साथ कबूल करते हैं। अगर आप भी इन लोगों की सफ में आना चाहते हैं तो आज ही से अल्लाह को ही अपना शाफी मानिए और दुनिया के हर सहारे से पहले और बढ़कर रब पर तवक्कल करना सीखे। नंबर 2, ये लोग झाड़ फूंक नहीं करवाते। ये वो अजीम बंदे होते हैं जिन्होंने अपने दिल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने झुका दिया होता है। ना खुद झाड़ फूंक करवाते हैं, ना किसी से इसका मुतालबा करते हैं और ना ही किसी जाहिरी रूहानी सहारे के पीछे भागते हैं। अगरचे कुरान की आयत पढ़कर दम करना, फूंक मारना और रुक़या शरिया जैसे अमाल सन 90 से साबित और जायज है, लेकिन ये लोग अपने बुलंद रूहानी मकाम की वजह से इसे भी तर्क कर देते हैं, क्योंकि उनके नजदीक किसी से ये कहना कि मेरे लिए दम कर दो, ये भी तवक्कल में कमी और अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद के मुनाफी है। ये लोग न सिर्फ दवा और रूहानी इलाज से बल्कि हर किस्म के गैर अल्लाह पर इन्हिसार से अपने दिल को आजाद रखते। उनके दिल में कोई खला नहीं होता जिसे तावीज, दम झाड़ फूंक से पुर किया जाए। उनका दिल पहले ही रब के कुर्ब से लबरेज होता है। उनका ईमान, उनकी उम्मीद, उनकी हिफाजत और उनकी शिफा सब कुछ वो अल्लाह के इख्तियार पर छोड़ देते हैं। दम करना जायज है, लेकिन अल्लाह पर ऐसा कामिल तवक्कल रखना कि बंदा खुद कुरान पढ़कर अपने लिए दुआ करे और दूसरों से कोई तवक्को ना रखे, ये ईमान की आला तरीन सतह। ये वो लोग होते हैं जो रब से बराह रास्त जाने वाले होते हैं। ना उनका दिल किसी आमिल के पास जाता है, ना किसी पीर के हुजरे में सुकून तलाश करता है, ना वो तवीज़ों के पीछे भागते हैं और ना ही कोई वसीला तलाश करते हैं। नंबर 3,
ये लोग बदशगुनी, बदफाली से नफरत करते हैं। बदशगुनी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के दिल से यकीन छीन लेती है। जमाना जाहिलियत में बदशगुनी का यह हाल था कि लोग अपने रोजमर्रा के फैसले किसी परिंदे की परवाज, ख्वाब या किसी मामूली मंजर की बुनियाद पर किया करते। अगर परिंदा दाएं जानिब अलिफा जाए तो नेक फाल, और अगर बाईं तरफ तो बुरा शगुन। अगर काली बली रास्ता काट जाए तो सफर मंसूख। अगर किसी बीमार या कमजोर शख्स को देख लिया तो फौरन वापस लूट आओ, क्योंकि बदशगुनी लग गई है। मगर वो 70,000 खुश नसीब अफराद जिन्हें बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता की जाएगी, वो उन तमाम बातिल नजरियात और झूठी अलामात से मुकम्मल तौर पर पाक होंगे। उनका अकीदा किसी खारजी इशारे या ख्याली वहम पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तकदीर और मशीयत पर होता है। ये लोग अकीदे में इतने साफ, सच्चे और तवक्कल वाले होते हैं कि वो जबान से भी कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकालते जो अल्लाह की कुदरत पर शका वसवसे को जाहिर करे। उन्हें ये जुमले भी गरां गुजरते हैं, किस्मत खराब है, नजर लग गई है, काले कपड़े पहन लिए, नुहुसत आ गई, आज मंगल है, काम ना करो। वो इन तमाम बातों को जाहिलाना और शिर्क आमीज समझते हैं, क्योंकि ये सब बातें अल्लाह की तौहीद और तकदीर पर ईमान को मजरू करती हैं। ईमान के ये पाकीज़ा लोग जानते हैं कि ना दिन बुरे होते हैं, ना महीने, ना जानवर, ना रंग, सब कुछ अल्लाह की रजा से होता है। नंबर 4, तवक्कल वो कामिल यकीन है जो दिल को किसी और जानिब झुकने नहीं देता। जब जिंदगी में तूफान आते हैं, हालात खराब होते हैं, दुश्मन चारों तरफ होते हैं, बीमारी घेर लेती है, ये लोग ना घबराते हैं ना बिखरते हैं, बल्कि दिल से कहते हैं अल्लाह हमें काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। उनका अल्लाह पर एतमाद ऐसा होता है जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में खुद को महफूज समझता है। उन्हें ना दुनिया की चमक मुतासिर करती है, ना आजमाइश मायूस करती है। वो जानते हैं कि जिस रब पर वो ईमान लाए हैं वो कभी अपने बंदे को ज़ाय नहीं करता। इन 4 सिफात के हामिल लोग दर हकीकत इस मुंतखब रूहानी तबके से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें अल्लाह ने खुसूसी फजीलत अता फरमाई है। ये लोग न सिर्फ दुनिया में अल्लाह के राजदार बंदे होते हैं, बल्कि क़यामत के दिन बगैर किसी सवाल और जवाब, बगैर किसी खौफ व हिसाब सीधा जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। ना मीज़ान होगा, ना नामा अमाल, ना अजाब का कोई मरहला, बस रब की तरफ से ऐलान होगा, दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम पर ना कोई खौफ है ना कोई गम। नाजरीन, जब रसूल अल्लाह की मजलिस में ये रूह को लर्जा देने वाली खुशखबरी सुनाई गई, जब आपने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया हर एक उन 70,000 खुश नसीबों के साथ मजीद 70,000 अफराद दे दिए जाएंगे। गोया हर खुश नसीब के साथ 70,000 मजीद अफराद शामिल किए जाएंगे। अगर इस हिसाब से शुमार किया जाए तो इब्तिदाई 70,000 के साथ मिलाकर ये तादाद 4 करोड़ 90 लाख से तजावुज कर जाती है, यानी तकरीबन 5 करोड़ अफराद बगैर किसी हिसाब के सीधे जन्नत में दाखिल होंगे। ये सिर्फ मदद नहीं, बल्कि इस उम्मत पर अल्लाह ताला का खास करम है। ऐसी उम्मत जिसके नबी रहमत लिल आलमीन हैं, जिनकी दुआएं रब अल आलमीन फौरन सुनता है, और जिस उम्मत के लिए खुद अल्लाह फरमाता है तो अल्लाह तुम्हें मुआफ करने वाला है। ऐसी उम्मत के अफराद अगर इखलास, तवक्कल और कामिल ईमान की सिफात के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो उनके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर दिए जाते हैं। ये नजात का वो सुतून है जिस पर अगर बंदा मजबूती से कायम हो जाए तो वो दुनिया व आखिरत के हर तूफान से महफूज रहता है। वो दिन जिसका तसव्वुर ही दिल को दहला देता है, जब आसमान फट जाएंगे, जमीन अपने बोझ अलिफागल देगी, समंदर खोल दिए जाएंगे और हर इंसान अकेला खड़ा होगा अपनी पूरी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देने के लिए। कुरान मजीद में कई जगह इस दिन की होलनाकी बयान की गई है, लेकिन सूरा इब्स में अल्लाह ताला फरमाता है कि इस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और बेटों से, हर शख्स को सिर्फ अपनी पड़ी होगी। सोचिए, माँ जैसी हस्ती,
जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, वो भी इस दिन अपनी औलाद को भूल जाएगी। ये कैसा दिन होगा? सवाल ये है कि हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम इन खुश नसीबों में से होंगे जिन्हें हिसाब की हाजत ही नहीं, या इनमें जिनके अमाल मीजान में हल्के निकलेंगे? वो दिन एक फैसला कुन लम्हा होगा, हिसाब आ नजात, खौफ आ खुशी, हलाकत आ जन्नत। और ये फैसला आज के हमारे अमाल पर मुनहसिर है। जब पिल सिरात जैसे बारीक और तेज रास्ते से गुजरना होगा, जब अमाल का तराजू झूलेगा, जब नाम अमाल हाथों में थमाया जाएगा, तो इस दिन की कामयाबी का दारो मदार आज की खुद एहतिसाबी पर होगा। आज का इंसान बेशुमार मसाइल और उलझनों में घिरा हुआ है, मगर क्या हमने कभी एक लम्हे के लिए रात कर खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं वाकई नजात के लिए तैयार हूं? क्या मेरा अकीदा खालिस है या इसमें शिर्क या मिलावट है? क्या मैं अपने मसाइल के हल के लिए अल्लाह से रुजू करता हूं जैसे अंबिया और सुलहन करते थे? क्या मैं बदशगुनी से डरता हूं जैसे काली बली के गुजरने, मखसूस दिनों की नुहूसत या अंडे के वहम से, जो दरअसल ईमान की कमजोरी की अलामत है? आज फैसला करें कि हम न किसी गैरुल्लाह के दर पर झुकेंगे, न किसी तमीमा तावीज को अकीदा बनाएंगे, बल्कि सिर्फ इसी रब पर तवक्कल करेंगे जिसने आसमान बुलंद किया और जमीन बिछाई। ए अल्लाह, हमें इन 70,000 खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनसे ताव ने हिसाब ना लिया। अगर अब भी चाहते हैं कि अब का शुमार उन्हीं खुश नसीबों में हो, तो अभी नियत करें, तौबा करें और इस पैगाम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि शायद यही लम्हा आपकी नजात का सबब बन जाए।